Hi students, today we are going to talk about what is a company, what's its legal status, characteristics, and what are the disadvantages of forming a company. So basically today we are going to cover the basics and make your basics clearer. So let's dive into it. So what is a company? As per company law, अगर आप definition देखोगे तो it's very simple कि any company incorporated under this law or previous company law, that's a company. So but अगर हमको broader level पे understand करना है कि कंपनी क्या होती है तो this is how we are going to understand it. So basically it is association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it in some trade or business and who share profit and loss arising therefrom. So this is basically what a company is, जहाँ पे दो या दो से ज्यादा लोग पैसे कंट्रीब्यूट करते हैं टू अ कॉमन फंड. ठीक है. और वो जो फंड होता है उसको एम्प्लॉय करते हैं या लगाते हैं इन अ ट्रेड और बिजनेस एंड बेसिकली उससे जो पैसे जनरेट होते हैं, जो प्रॉफिट या लॉस जनरेट होता है वो शेयर करते हैं. So that is a company. Common stock is generally denoted as money or money's worth and is the capital of the company. ठीक है. Now, who contribute in it, form it, or to whom it belongs are the members. So हमने कैपिटल देख लिया कि कैपिटल क्या होता है, हमने ये देख लिया कि मेंबर्स क्या होते हैं. अभी कैपिटल का जो प्रोपोर्शन होता है, ओके, द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल स्टॉक to which each member has contributed entitled is his particular share. So हमने शेयर भी देख लिया. शेयर्स आर जनरली ट्रांसफरेबल, जनरली नहीं, दे आर ट्रांसफरेबल. हाँ, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इफ इट्स पब्लिक और प्राइवेट, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, बट दे आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल. ओके, सो दिस इज व्हाट इज अ कंपनी. What's the legal status of company? It's very simple. It is an artificial juridical person. Artificial juridical person क्यों बोलते हैं? Because it's created by law, and since it's created by law, so basically उसको dissolve भी law ही कर सकता है, and it's called artificial juridical person क्योंकि वो मर नहीं सकती है ऐसे ही naturally, and it's a separate legal entity. Okay, it's different from its members basically. नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, तो यहाँ पे आपके मॉड्यूल में 9 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं. हावेवर आप मतलब ऐसे पॉइंट्स देखोगे तो 9 के 9 अलग पॉइंट्स है. हावेवर आप अंदर अगर मटेरियल पढ़ोगे तो इट्स ऑल वन एंड द सेम थिंग, क्योंकि उन लोग ने जो डिस्क्राइब किया है इट्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर. लाइक right now only I can explain. So starting with corporate personality, so it bears its own name क्योंकि obviously corporate personality है, so it's distinct from its members, right? तो उसका खुद का एक नाम होता है. Its assets are separate and distinct from its members. So ये वो separate property वाले point में cover हो जाता है. Different person can incur debts, borrow money, have a bank account, employ people, enter into contacts and can sue or be sued. So can sue or be sued भी एक अलग point है, but ये यहाँ पे भी आएगा. Own property again वही separate property वाला हो गया. Now this is important, okay? From the अगर corporate personality आ रहा है तो ये चीज आना ही है यहाँ पे. Shareholders are notional owners and creditors, okay? They are notional owners. And like they are not just the owners, they are also creditors to the company. Reason being वो पैसे देते हैं and end में they expect returns from the company, right? So that's why they are creditors, क्योंकि वो एक liability side में दिखता है. Shareholders are not the agents of the company. Again, this is also very important. Now let's discuss a few case laws. So basically जो separate legal entity वाला concept है that came into being because of this case, Salmon versus Salmon and Company Limited. So basically this is a person जिसका एक prosperous business था as leather merchant and boot manufacturer. So later on उसने क्या किया, along with his wife, a daughter and 4 sons. So basically इन लोग 7 लोग हो गए, वो खुद, वाइफ, डॉटर और 4 बेटे, तो 7 लोग हो गए. सातों को एक एक शेयर पकड़ा दिया ऑफ £1 ईच. सो 7 पाउंड का कैपिटल लेके एक लिमिटेड कंपनी खोली जिसमें वो खुद एमडी था एंड उसके जो 2 बेटे थे वो डायरेक्टर्स थे. तो बेसिकली अब देखा जाए तो शेयर होल्डर्स जो है वो भी फैमिली ही है एंड जो डायरेक्टर्स है वो भी फैमिली ही है. सो बेसिकली द कंपनी इज हिज ओनली. जब उसने फिर क्या किया, उसने जो अपना बिजनेस था वो बेच दिया टू दैट कंपनी.
फॉर 38,782 तो उसका बाइफर्केशन ऐसा था कि 10,000 पाउंड के उसने डिबेंचर्स लिए, जिसपे उसने फ्लोटिंग चार्ज क्रिएट किया ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। 20,000 पाउंड के शेयर्स लिए एंड 1 पाउंड ईच शेयर का था। एंड बाकी का जो बैलेंस बच जाता है 8,782 पाउंड, वो उसने कैश में लिए। तो जब ये उसने बेचा तब बिजनेस अच्छा था, सॉल्वेंट कंपनी थी। बट सून क्या हुआ, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन। जब वो लिक्विडेशन में गई तब कंपनी के पास असेट्स थे 6,050 पाउंड के एंड लाइबिलिटीज थी 18,000 पाउंड। तो उसमें से 10,000 तो डिबेंचर्स थे, जो ये वाले डिबेंचर्स हैं जो इसको मिले थे, एंड बाकी का जो 8,000 पाउंड है वो अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स के थे। तो अब ये अनसिक्योर्ड ट्रेड क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं कि ये जितने भी असेट्स है कंपनी के, ये सब हमको दे दो। रीजन भी, जो डिबेंचर्स है, मतलब लाइबिलिटीज में सिर्फ एक तो ये खुद है और एक सैलमॉन है, राइट। सो उसने बोला कि ये जो कंपनी है इट इज मियर अलाइज और एजेंट फॉर सैलमन, क्योंकि आप देखो तो शेयर होल्डर्स भी वो और उसकी फैमिली है और डायरेक्टर्स भी वही है। सो इट्स बेसिकली एन एजेंट। सो दैट्स वाई ये जो 6,050 पाउंड है ये पूरा का पूरा हम डिजर्व करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, इज देयर क्लेम राइट और रॉन्ग? So since we are talking about separate legal entities, so the answer is very obvious that he is wrong, because the company is altogether a different person from its subscribers and from its management for that matter, and company is not in law their agent or trustee। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि जो सब्सक्राइबर्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं हो सकते या दे हैव टू बी डिफरेंट पर्सन। देयर इज नथिंग लाइक दैट। सो कंपनी का फॉर्मेशन ही इसलिए होता है बिकॉज इट्स अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इट हैज नथिंग टू डू विद इट्स शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट। सो हो सकता है सिर्फ दो ही लोग हो, हस्बैंड एंड वाइफ जो शेयर होल्डर हो वो ही दो लोग, डायरेक्टर भी हो, तो भी वो कंपनी अलग ही रहेगी। कंपनी कभी भी उसके सब्सक्राइबर्स से सेम नहीं होती है। ओके, सो दैट इज व्हाट वाज हेल्ड इन दिस केस। सेकेंड केस वाज ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। सो बेसिकली ये केस में क्या हुआ था, ली इज बेसिकली अ क्वालिफाइड पायलट जो एक कंपनी खोलता है फॉर एरियल टॉप ड्रेसिंग, एंड उसने बेसिकली कंपनी के सारे शेयर्स खरीदे हुए थे एक्सेप्ट फॉर वन शेयर। ठीक है, सो 99% शेयर होल्डर ये खुद है, वो खुद ही एमडी भी था। एंड एज एमडी उसने खुद को अपॉइंट किया एज चीफ पायलट एट सैलरी। सो बेसिकली ये एम्प्लॉय भी हो गया कंपनी का। अब क्या होता है, वाइल वर्किंग फॉर द कंपनी एज पायलट एयर क्रैश हो जाता है। सो ऑब्वियसली उसकी डेथ हो जाती है उसमें। तो उसकी जो विडो होती है शी क्लेम कॉम्पनसेशन फॉर द डेथ। अब कंपनी इस कॉम्पनसेशन को अपोज करती है, सेइंग कि वो खुद ही एम्प्लॉयर और वो खुद ही एम्प्लॉय नहीं हो सकता है, राइट। ही कैन नॉट बी द वर्कर एंड द पर्सन प्रोवाइडिंग द वर्क। सो दैट्स व्हाई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी उसकी खुद की है। सो इन दैट कैपेसिटी ही इज नॉट द वर्कर ऑफ द कंपनी। So what do you think will be held over here? Can he be the employer and employ both of the company? So let's see. So it was held that Lee and his company were distinct legal person जो contractual relationship में आए थे, where he became the chief pilot, a servant of the company. So उसने as MD, in the capacity of MD, उसने अपने आप को chief pilot बनाया, तो वो servant हो गया। So basically he can hold both the positions. He can be employer and employee also. So his widow was entitled to get compensation. In effect, the magic corporate personality enabled him to be the master and servant at the same time and enjoy the advantages of both। ठीक है, प्रॉफिट्स में शेयर भी मिला, सैलरी भी मिली, कॉम्पनसेशन भी मिला। सो वो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों हो सकता है बाय दिस कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट इज न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन है इज कि जो कंपनी होती है उसमें उसका जो एक्सपर्टीज होता है, कैन इट बी सेम एज द एक्सपर्टीज ऑफ इट्स मेंबर्स, मतलब एक उसकी मेंबर्स का एक्सपर्टीज को उसका एक्सपर्टीज माना जाएगा कि नहीं। दैट वाज द क्वेश्चन। सो अभी इसके फैक्ट्स ये थे कि टीपीआई, LMI एंड WML, ये तीनों इंडियन ग्रुप अलॉन्ग विद मिस्टर अरुण पुरी, इन्होंने 60% होल्ड करके अलॉन्ग विद IIPL जो सिंगापुर बेस्ड कंपनी थी उसको 40% दिया। तो एक नई कंपनी बनाई न्यू होराइजन लिमिटेड।
एंड न्यू होराइजन लिमिटेड ने बेसिकली एक टेंडर में अप्लाई किया जो रिजेक्ट हो गया, सेइंग कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। बट हावेवर उसका ये कहना था कि इन लोगों के पास एक्सपीरियंस है। बेसिकली जो ये एक जॉइंट वेंचर था बिटवीन दीज पीपल। सो जो जॉइंट वेंचर के पीछे जो लोग हैं जिन्होंने ये जॉइंट वेंचर बनाया, दे हैव एक्सपीरियंस। सो उनका कंटेंशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। सो इट वाज हेल्ड कि experience of company can mean the experience of constituents of joint venture. So basically जो जो मेन पर्सन थे बिहाइंड द कंपनी, उनके एक्सपीरियंस को लिया जाएगा क्योंकि दे वर द पीपल हु कंट्रीब्यूटेड मशीन्स, इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज इन द फील्ड। तो उनके एक्सपर्टीज को काउंट किया जाएगा। सो दैट वाज हेल्ड इन न्यू होराइजन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। Now moving on to the next characteristic, artificial person. So a company is an artificial person. Artificial person का meaning होता है juridical person, जो हम already देख चुके हैं. Now the company has certain rights, protection भी है, privilege भी है, responsibility भी है, and liabilities भी है. It is a legal person who can enter into contracts, possess properties in its own name, sue and can be sued by the others. As I said, it's very similar. नाउ यहाँ पे ये जो फोर्थ पॉइंट है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अब उसको आर्टिफिशियल पर्सन क्यों बोलते हैं? एक तो वो इनविजिबल है, इट्स इनटेंजिबल, इट्स एग्जिस्टिंग ओनली इन कंटेम्पलेशन ऑफ लॉ। That's why it's artificial, and person because it's capable of enjoying rights and being subject to duties. So that's how it is an artificial person. इसमें केस लॉ इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो इसमें क्वेश्चन इज कि वेदर कंपनी इज एंटाइटल्ड टू सू एज एन इंडिजेंट पर्सन अंडर ऑर्डर 33 रूल 1 ऑफ सीपीसी 1908। तो अब ये ऑर्डर क्या कहता है? ये ऑर्डर बेसिकली बोलता है कि अगर आप एक पुअर पर्सन हो जो लिटिगेशन का कॉस्ट नहीं बेयर कर सकता है, तो यू कैन गो अंडर दिस ऑर्डर and you can file suit as an indigent person. So but जो opposite party होती है, they say that जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन क्योंकि पर्सन नेचुरल पर्सन होता है। सो अब हमको देखना है कि पर्सन की डेफिनेशन में क्या फॉल करता है कंपनी के नहीं। सो पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, क्योंकि पर्सन का जो डेफिनेशन दिया है इट हैज एन एक्सटेंडेड मीनिंग। सो अगर आप उसका मीनिंग देखोगे तो पर्सन इंक्लूडेड एनी कंपनी एज एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। Person had been given its meaning in the context in which it was used, and being benevolent provision, it was to be given an extended meaning. Thus, a company may also file suit as an indigent person. Okay. Next characteristic is perpetual succession. So, perpetual succession का meaning is कि it is unaffected by death, insolvency, retirement, departure, or any kind of change in any member or director. So, basically, member रहे ना रहे, company तो रहने वाली है. That is what it means. Okay, so it's not dependent on the life of a member or on being of that member. हो सकता है वो insolvent हो गया तो भी, वो अगर मर गया तो, वो रिटायर हो गया तो, या वो चेंज हो गया, कोई भी रीजन हो, मेंबर हो ना हो, डायरेक्टर हो ना हो, कंपनी तो रहेगी जब तक उसको वाइंड अप नहीं कर देते हो। सो इट इज सेड दैट मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर। ड्यूरिंग द वॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ वन प्राइवेट कंपनी वाइल इन जनरल मीटिंग वर किल्ड बाय अ बॉम्ब। सो बेसिकली एक प्राइवेट कंपनी में जनरल मीटिंग चल रही थी और वहां पे बॉम्ब फूट गया वॉर के टाइम पे, तो सबके सब मर गए बट कंपनी बच गई। Reason being, it does not depends on members' life. It has a perpetual succession. So not even a hydrogen bomb could have destroyed. Separate property. It is capable of owning, enjoying, and disposing of property on its own name. ठीक है, उसके खुद के नाम पे प्रॉपर्टी हो सकती है. It does not require a person to hold property on its behalf. सो इसमें केस इज मिसेस बच्चाएव गुजदार। सो इसमें क्या होता है, एक टी कंपनी होती है, तो टी कंपनी इज बेसिकली एंटाइटल्ड टू बी एग्जेम्प्टेड अंडर इनकम टैक्स के 60% उसका पार्टली
एग्रीकल्चरल में चला जाता है तो उसको 60% तक एग्जेम्प्ट होता है। बट सेम इनकम जब शेयर होल्डर को मिलता है इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड तो वो टैक्सेबल हो जाता है। So basically, it was held that the shareholder does not, as is erroneously believed by some people, become the part owner of the company or its property. He is only given certain rights by law. So उसको basically voting का ये है राइट है, उसको प्रॉफिट्स में शेयर का राइट है, उसको रिटर्न का राइट है, बट वो पार्ट ओनर नहीं बन जाता है टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपनी। वो ओनर कब बनेगा, जब कंपनी वाइंड अप होगी एंड उसका जो शेयर होगा इक्विवेलेंट, उस हिसाब से इफ डिस्ट्रीब्यूशन तक बात आती है तो उस हिसाब से वो ओनर बनेगा तो बनेगा, नहीं तो जस्ट बिकॉज ही इज अ शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी डजंट मेक हिम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। So that is what it was held in this case. Next is HC Shastri versus Dolphin Canpack Private Limited. This is an important case क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। सो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था कि शेयर होल्डर ने ट्राई किया था कि वो अपने असेट्स यूज करे, सॉरी कंपनी के असेट्स यूज करे टू पे ऑफ हिज पर्सनल लोन्स। So it was held that neither a shareholder nor a director has any right in the property and assets of the company, which is a separate juristic entity distinct from the shareholders. The shareholder who buys shares does not buy an interest in the property of the company, which is a juristic person entirely distinct from the shareholder. The shareholder, as an investor, becomes entitled to participate in the profit of the company and have a say in management as per law. He can claim the leftover the assets of the company in case the company is wound up. So this is similar to what was held in the last case. So यही same चीज है। नेक्स्ट इज चिरंजी लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली इसमें ये था कि कंपनी हैज फंडामेंटल राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड इन द इवेंट ऑफ इंफ्रिंजमेंट ऑफ सच राइट द कंपनी कैन ब्रिंग एन एक्शन एंड नॉट इट्स शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली शेयर होल्डर बिना कंपनी को पार्टी बनाए वो खुद नहीं केस कर सकते किसी और के ऊपर जब इन्फ्रिंजमेंट कंपनी के साथ हुआ। अगर कंपनी के साथ हुआ है कुछ गलत तो कंपनी खुद खुद के नाम पे एक्शन लेगी एंड a shareholder cannot do that, okay, especially if he's trying to go solo. The company has to be a party to the proceeding, so that was held in this case. Next is transferability of shares. तो अभी जो कैपिटल होता है it is divided into shares, okay. शेयर्स क्या होते हैं, इट्स अ मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज ट्रांसफरेबल। सो अगर आप ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स देखोगे, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। सो जो आर्टिकल्स है उसमें स्पेसिफिकली ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का पूरा प्रोविजन लिखे होता है कि किस या प्रोसीजर लिखा होता है कि किस तरह से ट्रांसफर होगा। हावेवर अगर आपके आर्टिकल्स में ऐसा नहीं लिखा है, टेबल एफ में आपने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है, so it is going to be in accordance with transfer of movable property, okay, and private company है तो restrictions होते हैं on transfer of shares। Capacity to sue or be sued. So a company's right to sue arises when some loss is caused to the property or personality of the company. A company as a person distinct from its members may even sue one of its own members. ऐसा जरूरी नहीं है कि कंपनी खुद के मेंबर्स पे केस नहीं कर सकती या लीगल प्रोसीडिंग्स नहीं इनिशिएट कर सकती है। दे आर टू डिफरेंट पीपल सो दे कैन सू ईच अदर एंड उसके लिए कुछ लॉस होना चाहिए पर कंपनी का, ऐसे ही उठ के नहीं कर सकते। then a company is not a citizen. So Citizenship Act 1955 का जो 2F है वो expressly exclude करता है कंपनी को, एसोसिएशन को एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स को फ्रॉम सिटीजनशिप। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से भी वो एक सिटीजन नहीं है। However, it has certain rights in Constitution of India like right of equality, but still it is distinct because जो citizenship है that is available to individuals or natural persons only and juristic persons को वो cover नहीं करता है। However, the company does have nationality, domicile and residence, ये तीनों चीजें होती है। and कंपनी का जो domicile है that's basically the place जहाँ पे वो incorporate होती है, so that's the not a citizen वाला part। इस पे केस लॉ इज बेनेट कॉलमैन कंपनी। सो इट वाज हेल्ड दैट बेसिकली ये केस में ऐसा बोला गया था कि जो फंडामेंटल राइट होते हैं ऑफ शेयर होल्डर्स एज सिटीजन, जस्ट बिकॉज वो शेयर होल्डर है
तो वो उससे उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वो लूज नहीं हो जाते। अगर कंपनी के राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं एंड एज अ रिजल्ट उनके भी राइट्स इन्फ्रिंज हुए हैं, तो दे कैन सू, because their basically the fundamental rights as shareholders are impaired by state action. Their rights as shareholders are protected. The reason is that the shareholders' rights are equally and necessarily affected if the rights of the company are affected. So they can sue in that case. Characteristics of company में eighth point is limited liability. So liability of member as shareholder extends to the contribution to the capital of the company up to the nominal value of shares held and not paid by him. So basically अगर मैंने 1,000 रुपीज के शेयर्स लिए हैं से फॉर एग्जाम्पल, जिसमें से मेरे 800 रुपीज मैंने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, सिर्फ 200 इज द अनपेड अमाउंट। सो बेसिकली कल को अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है, इट गोज अंडर लिक्विडेशन, so I, as a shareholder, will only be liable to pay that 200 rupees and nothing more than that. That's the advantage of forming a company कि आपको limited liability मिलती है। वरना वरना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फॉर पीपल टू फॉर्म अ कंपनी, क्योंकि उसके काफी डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। सो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज इज कि उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अगर कल को कंपनी नहीं चली या बंद हो जाती है या लिक्विडेशन में चली जाती है, तो शेयर होल्डर्स की जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है या जिसने भी फॉर्म की है कंपनी, उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी होती है उस पे बात नहीं आती है। सो इट्स अ मच सेफर ऑप्शन देन सोल प्रोप्राइटरशिप ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि वहां पे डिस्टिंक्ट एंटिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वहां पे जो प्रोप्राइटर है, जो पार्टनर है, वो ही फर्म भी होती है। सो बेसिकली अगर फर्म या प्रोप्राइटरशिप पे कोई लोन है या लाइबिलिटी है, तो वो ऑटोमेटिकली पार्टनर और प्रोप्राइटर की भी हो जाती है। सो दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू इट। वन इज कि अगर नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो जाते हैं, कम एज इन पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 होने चाहिए, तो 7 से अगर कम हो गए, तो प्राइवेट में 2 से कम हो गए, तो और ये कम नंबर ऑफ मेंबर्स के साथ बिजनेस हो रहा है फॉर मोर देन 6 मंथ्स एंड मेंबर्स को पता है ये भी, ठीक है, तो उसके लाइक पता होने के बाद भी दे आर कैरिंग ऑन बिजनेस, तो इन दैट केस लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। फिर दूसरा इज के जो कंपनी फॉर्म हुई है वो खुद ही अनलिमिटेड हुई है। ओके, इट्स एन अनलिमिटेड कंपनी अंडर सेक्शन 3 subsection 2 clause C। एंड तीसरा इज कि इट वाज इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन या रिप्रेजेंटेशन, या फिर कुछ सप्रेस किया है कोई भी मटेरियल फैक्ट एंड या फिर विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड, अगर आपने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है, तो इन दैट केस भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। देन फोर्थ इज वाइंडिंग अप के टाइम पे ऐसा पता चला कि जो बिजनेस है हैज बीन कैरिड ऑन विद इंटेंट टू डिफ्रॉड क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी और एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन, तो अभी इसमें एप्लीकेशन कौन कर सकता है? ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि वाइंडिंग अप के टाइम पे ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है, कंपनी लिक्विडेटर, क्रेडिटर, कॉन्ट्रीब्यूटरी ऑफ द कंपनी। ये चारों में से कोई भी अगर एप्लीकेशन करता है ट्रिब्यूनल को सेइंग के द बिजनेस वाज कैरिड ऑन टू डिफ्रॉड देम, तो अगर जो ट्रिब्यूनल है उसको बराबर लगता है, सो ही कैन डिक्लेयर दैट एनी पर्सन हु हैज बिन और इज डायरेक्टर, मैनेजर, ऑफिसर ऑफ द कंपनी, और जो भी पार्टी था ऑन कैरिंग ऑन द बिजनेस, तो वो पर्सनली लायबल हो जाता है, तो वो उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। फिफ्थ इज प्रोस्पेक्टस इशू किया विद द इंटेंट टू डिफ्रॉड, तो वहां पे भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। या फिर कंपनी ने डिपॉजिट को रीपे करना, जानबूझ के डिपॉजिट को रीपे नहीं किया या इंटरेस्ट को रीपे नहीं किया विद इन द टाइम, तो एंड इट इज एविडेंट दैट इट वाज विद एन इंटेंट टू डिफ्रॉड द डिपॉजिटर्स, तो वहां पे भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। एंड a report is made by an inspector जो बताता है कि फ्रॉड हुआ है, एंड वो फ्रॉड से डायरेक्टर, केएमपी, एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन और एंटिटी ने अनड्यू एडवांटेज या बेनिफिट लिया है, तो इन दैट केस ऑल्सो अगर कोई असेट, प्रॉपर्टी या कैश है, तो उसका डिसगॉर्जमेंट हो जाता है एंड उनकी लाइबिलिटी
अनलिमिटेड हो जाती है। सो बेसिकली इसमें कौन कौन से पॉइंट्स थे? नंबर वन था इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कम हो गए एंड तुमने 6 महीने से ज्यादा बिजनेस कैरी ऑन किया तो वो। फिर नंबर टू था अनलिमिटेड कंपनी है। तीसरा इनकॉर्पोरेट किया विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। वाइंडिंग अप किया विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड। प्रोस्पेक्टस इशू किया विद द इंटेंशन ऑफ फ्रॉड एंड रिपोर्ट मेड बाय एन इंस्पेक्टर स्टेटिंग दैट फ्रॉड एंड लास्ट था डिपॉजिटर को पैसा नहीं दिया टू डिफ्रॉड देम। सो बेसिकली ये पॉइंट्स थे विच आर एक्सेप्शंस टू द लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। सो इनके इस केस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाती है। ऑल्सो अ थिंग टू रिमेम्बर कि लाइबिलिटी कैन बी लिमिटेड बाय गारंटी और बाय शेयर्स। तो शेयर्स में हमने जो एग्जांपल बात किया 800 200 वाला, 200 के अनलिमिटेड 200 की लाइबिलिटी पे करने को आ रही थी वो। और दूसरा होता है लिमिटेड बाय गारंटी। तो गारंटी में अगर मैंने गारंटी दी है ऑफ 200 रुपीज, तो आई एम लाइबल टू पे ओनली दैट मच। सो ये दो केसेस होते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स। तो contractual rights refer to guaranteed set of rights given to all the parties when they enter into a valid contract. तो बेसिकली ये कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप के ऊपर आ गया। एंड नाउ बिकॉज द शेयर होल्डर इज नॉट अ पार्टी टू दैट अग्रीमेंट, तो वो एनफोर्स नहीं कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट। बेसिकली जो पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में दे ओनली कैन एनफोर्स इट and they only can sue for any infringement. So a shareholder cannot enforce a contract made by his company. He is neither a party to the contract nor be entitled to benefit derived from it, as a company is not a trustee for its shareholders. And company as a legal person can take action to enforce its legal rights or be sued for breach of its legal duties. Its rights and duties are distinct from those of its constituent members. So ये थे characteristics of the company. Now coming to disadvantages of a company. So it involves formality and expense, क्योंकि obviously when you form a company तो आपको बहुत सारी filings करनी पड़ती है for incorporation also, जैसे spice forms जाएंगे, रन फॉर्म जाएगा फॉर नेम अप्रूवल, फिर उसके बाद फॉर्म होने के बाद भी यू हैव टू लाइक डू एनुअल फाइलिंग एंड कुछ भी चेंज होता है तो वो इंटीमेशन की फाइलिंग होती है। तो वहां पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज बढ़ जाती है ना। ऑब्वियसली ये सब बात एक नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होगी। नाउ यू आर स्टडिंग CS, सो यू नो and it's your job to file for other companies, so obviously you're not going to do that for free, right? You are going to charge money for that, so it involves a lot of expense and formality. So that's why it's very difficult, क्योंकि कैसे होता है ना, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप या एनी अदर फॉर्म ऑफ फर्म देखो तो फर्म में ये सब कंप्लायंसेस नहीं होते, तो ये सब खर्चा बच जाता है। प्राइवेसी लॉस, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप MCA को सबमिट करते हो, तो आपके जितने भी फाइनेंशियल्स हो गए वो सब MCA के पास जाते हैं, बोर्ड रेजोल्यूशन हो गया। तो कोई भी पर्सन लाइक not even related to the company can just have to pay ₹100 and get those documents out. So आपकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं वहां पे कॉम्प्रोमाइज हो रही है, क्योंकि ₹100 में आपके कंपनी के जो जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपने फाइल किए वो सब उसके पास चले जाएंगे। डाइवर्सिफाइड कंट्रोल। सो ऑब्वियसली जब आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलते हो तो आपका पूरा का पूरा वो फर्म का कंट्रोल आपके हाथ में होता है। यू आर द होल एंड सोल ऑफ दैट फर्म। हाउएवर कंपनी में बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, सो वहां पे कहीं ना कहीं कंट्रोल में वो डाइवर्सिफिकेशन आ जाता है, बिकॉज वन शेयर वन वोट, ऊपर से मैनेजमेंट। सो वहां पे वो चीज हो जाती है। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इफ यू गो अगेंस्ट पब्लिक के इंटरेस्ट तो वेरियस अथॉरिटीज कैन कम, एंड ये एक्चुअली नजर में जल्दी आता है। रीजन बीइंग कि आपके जो भी डॉक्यूमेंटेशन है फॉर्म फाइलिंग के हिसाब से वो नजर में आ जाता है। बाकी सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह में वो इतना नजर में नहीं आता है, तो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है। एंड दूसरा फ्रॉड पॉसिबिलिटीज, बिकॉज देर आर टू मेनी पीपल इन्वॉल्व, देर आर मेनी पीपल इन द मैनेजमेंट, देर आर मेनी शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स। तो कोई भी एक भी इंसान अगर फ्रॉड करता है तो इट अफेक्ट्स द कंपनी। सो एंड जब तक वो रेगुलेटरी अथॉरिटी के नजर में आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। सो बेसिकली दीज वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ द कंपनी। सो नाउ टॉकिंग अबाउट पास्ट ईयर क्वेश्चन। तो जून 2025 में एक क्वेश्चन आया था विच इज Vijay and Purnima, husband and wife, started an organic fertilizer company called Vipur Organic Fertilizer Private Limited. Entire share capital of the company is held by Vijay and Purnima in equal proportions.
So 50-50% shareholders है. Vijay and Purnima are also the only directors of the company. So shareholders भी ये दो husband wife ही है. Members, sorry, shareholders is members. Directors भी husband and wife ही है. Board of directors of the company has appointed you as CFO and company secretary. Now Vijay and Purnima want to go on a world tour holiday costing 5 lakhs each and want the company to pay for the travel agency. So basically जो दो shareholders है, दो directors है, वो ही दोनों ट्रैवल करना चाहते हैं. तो दे आर लाइक के company will bear the expenses. As the CFO and company secretary of the company decide as per provisions under Companies Act 2013 and decided cases where the directors can use the company's money for personal trips. तो बेसिकली यहाँ पे दो केस लॉज इन्वॉल्व होंगे. एक तो ये बताना पड़ेगा, यू हैव टू स्टार्ट द आंसर सेइंग कि कंपनी इज अ लीगल सॉरी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स. सो वो कौन से केस में होल्ड हुआ था? वो सैलमन वर्सेस सैलमन में होल्ड हुआ था. तो एक वो केस का रेफरेंस आएगा. एंड दूसरा बेसिकली तुम कंपनी के पैसे कंपनी के होते हैं, वो उसमें शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स का कोई हक नहीं है टू यूज दैट मनी टू पे ऑफ देयर पर्सनल लाइबिलिटीज और एनीथिंग. सो उसमें केस आएगा HC शास्त्री वाला. So, how are we going to write the answer? First, we are going to start with separate legal entity as already laid down in Salman versus Salman. Then we are going to talk about separate property क्योंकि separate property में वो case है. And separate property says that the company has its own assets and properties. Okay. फिर we are going to talk about how मतलब relevant case law तो वो है HC शास्त्री वाला. We are going to jot down the facts के how a shareholder, like it was held that shareholder cannot use companies properties or money to pay off their personal liabilities. So and last में we are going to conclude saying कि no, Vijay and Purnima cannot use funds of the company for their personal purpose. So this is going to be the flow of your answer. Okay, so that was it for this video. Before signing off, let's do a quick revision. So first we saw what is a company. So association of many persons who contribute money or money is worth to a common stock and employ it to trade or business and share the profit or loss arising therefrom. So ये हमने देखा था कि कंपनी का डेफिनेशन था, उसमें कैपिटल को भी कैपिटल का मीनिंग भी बताया था और मेंबर्स का मीनिंग भी बताया था, शेयर का मीनिंग भी बताया था. Then we spoke about the characteristics of company. The characteristics में था corporate personality, artificial person, perpetual succession, separate property, transferability of shares, capacity to sue or be sued, not a citizen, limited liability. Limited liability में exceptions थे and not a citizen में ये था कि though the company is not a citizen but however it still it does have residence, nationality and domicile. लिमिटेड लाइबिलिटी के हमने 7 एक्सेप्शंस देखे थे एंड कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स. उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी. तो उसमें था एक तो ऑब्वियसली आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज फाइलिंग्स एंड ऑल बढ़ जाती है. फिर प्राइवेसी लॉस होता है बिकॉज एनीवन कैन व्यू द डॉक्यूमेंट्स बाय पेइंग मनी. एंड कंट्रोल डाइवर्सिफाई हो जाता है बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द मैनेजमेंट. पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज यू आर इन द व्यू ऑफ द रेगुलेटरी अथॉरिटीज. एंड फ्रॉड पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है अगेन बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ पीपल्स इन्वॉल्व. So that was the company. I hope your basics are clear. In case if you have any doubt, do let me know. Drop it in the comment section, and I'll see you in the next one. Thank you so much.